Hello guys, today we will discuss the trial balances, and it is assumed that the trial balance is ever the easiest topic in the field of accounting. So now it's a very easy topic, and only you have to require that you have to knowledge about the ledgers or account and how to close that, and their debit and credit balances. That is only required for the preparation of trial balances. Now we will discuss in this lecture. Now we will discuss then how to prepare the trial balances and how the question will come from in the examinations and how to tackle that. So most of our viewers are in the abroad, the countries where the non-Hindi people are also watching these videos, who has not knowledge about the Hindi. So that's why I am going to start the most of the lectures or most of thing in the English. Let's discuss today trial balance. First write something about the trial balance, and then I will prepare how to prepare the trial balances. Trial balance. Let's something write about the trial balance. The trial balance refers to a schedule. Trial balance refers to a schedule in which the balances of all ledger मतलब account ledger book are assembled into debit and credit column. To check the arithmetic accuracy of the entries posted in the ledger अकाउंट्स. तो सिंपली ये क्या कह रहा है कि हमारे पास जितने भी अकाउंट्स है सभी अकाउंट्स की डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की एक टी शेप में असेंबल कर देंगे, एक रो और एक कॉलम में रख देंगे, तो वो बैलेंस ट्रायल बैलेंसेज हो जाएंगे. तो ट्रायल बैलेंसेज से कब प्रिपेयर करता है? तो ट्रायल बैलेंसेज कभी भी प्रिपेयर कर सकता है, जैसे मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और ईयरली कैसे कभी भी प्रिपेयर कर सकते हैं. पर जनरली हमारे एंटिटी जो होते हैं वो ईयर एंड पर ही ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं. तो ये एमसीक्यू में आ सकता है कि ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर कब करते हैं? तो कभी भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जब हमें लगे तब हम प्रिपेयर कर सकते हैं. पर हम जनरली एक ईयर के एंड में 31 मार्च एंड इफ द अकाउंटिंग ईयर विल प्रिपेयर दी ट्रायल बैलेंसेज. कह रहा है कि सिंपली अब स्टार्ट करते हैं इसको. पहले कुछ लिखते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, फिर देखेंगे इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं. तो पहले उसको प्रिपेयर करने के लिए पहले इस लेजर को समझ लेते हैं जो प्रीवियस लेक्चर्स का था. तो द पीपल हु हैव नॉट वॉच द प्रीवियस लेक्चर्स देन गो एंड फर्स्ट वॉच द प्रीवियस लेक्चर्स, एंड इन दैट वी हैव टेल अबाउट द हाउ टू प्रिपेयर द लेजर्स अकाउंट एंड हाउ टू क्लोज द ledger account. This is the most important thing while before preparing the trial balance. If the people student do not know the how to close or how to prepare the ledgers or account, then he will not be able to answer the questions of the trial balances, and he may or may not be accurately answer the trial balances questions. So first thing we have to need that first understand that accounts or how to close it and how to transfer the balances from the here to in the form of trial balances. This is the cash account.
we have earlier discussed how to prepare the clause, how to close the accounts, or how to transfer the account. So now simply see here. तो कह रहा है कि ये अकाउंट है जो बैलेंस होगा, क्योंकि एसेट्स वाला अकाउंट है, ये भी एसेट्स वाला अकाउंट, ये भी बैलेंस होगा, ये भी एसेट्स वाला अकाउंट है, बैलेंस होगा, ये लायबिलिटी वाला अकाउंट है, बैलेंस होगा, ये है ये भी एक कैपिटल अकाउंट है, ये भी बैलेंस होगा, और ये सेल्स वाला अकाउंट है जो ट्रांसफ़र होगा, और ये जो परचेज वाला अकाउंट है ये ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ से हमारे पास कौन कौन सी बैलेंसेज होंगे जो ट्रायल बैलेंस में जाएंगे। तो सिंपली ये रहा इसकी टोटल, इस साइड को बोलते हैं हमेशा डेबिट हर एक अकाउंट में, और इस साइड को बोलते हैं क्रेडिट हर एक अकाउंट में। तो कह रहा है कि ये रहा इतने बैलेंसेज, तो इसमें टोटल डेबिट कितना है। तो हमने इस अकाउंटिंग पीरियड में हाउ मच डेबिटेड इज हेयर एंड हाउ मच क्रेडिट इज देयर। तो कह रहा है कि सभी को पहले टोटल कर लो कि ये कितना डेबिट है, और इन क्रेडिट साइड हमने इस ईयर में कितना क्रेडिट किया है। तो हमने इस ईयर में इतना क्रेडिट किया है, और दिस इज द बैलेंसिंग फिगर व्हिच इज simply carried forward to the next year as the opening balances of that particular account. And same is here, we have debited too much and credited only 30,000, and this is the balancing figure which will transfer to the next year as the opening balances. Now we will see about how to transfer that amount to the next years in this method also. And in capital account there is a simply 7 lakh as a credit, or in this year only 1 lakh as a debit. In the Q Limited he is my debtor, and only there is a 3 lakh, only 2 lakh is credited in this accounting year and 3 lakh is debited in this accounting year. In P Limited he is a creditor and we have debited 2 lakh in this year, or 3 lakh credited in that particular year. Or this is the sales account, and sales account matlab that is the revenues account or expenses account which is transferred to the profit and loss account every year, and the balance is not to be carried forward as said in the previous lectures. Then this is the this much is the sales, and it is transferred to the trading and profit and loss account. There is no balance because it is a revenues account. Here you said we should have to close that account in the every years to know to calculate the profit or loss earned during that particular year. In the purchase account, that much is the debit in that particular, or this is the transfer, or this is the credit, or this is the transfer. You have to write here 8 lakh as a transfer to the trade and profit loss account. Now we have 3 methods to prepare the trial balances. First is the total method. Let's discuss how to prepare the trial balances by the first method, that is total method. So first we see the how the debit और क्रेडिट balances. तो कह रहा है कि जिस अकाउंट के पास ज़्यादा अमाउंट होंगे वही उस अकाउंट की बैलेंस होंगे। तो इस अकाउंट में इस डेबिट साइड में है 14,30,000, 40,30,000, and credit side there is only 6 lakhs remaining at 30, means this is the debit balance, and it is carried forward to the next year as to balance BD as 830. This is the balancing figure, और ये बैलेंसिंग फिगर है, और ये हमारे डेबिट बैलेंस, क्योंकि हमारे पास डेबिट ज़्यादा है और क्रेडिट कम है, तो ये हमारी डेबिट बैलेंस है। तो ये रहा डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस। कैपिटल 7 लाख क्रेडिट, 1 लाख डेबिट, मीन्स ये रहा हमारे पास 6 लाख, और ये जाएगा अगले ईयर बाय बैलेंस BD 6 lakhs, and this is the credit balance. Simply we set credit balance. Or in this furniture account, that much is debit or that much is credit.
2 lakh is debit and 30,000 credit. Only that much is the balance sheet figure which is carry forward to the next year as to balance BD as 170, and this is the debit, this is the DR balance, simply say balance shortcut. Debtor account, that much is credited and that much is debited. तो डेबिटेड कितना है, डेबिट है 3 लाख और क्रेडिट है 2 लाख, तो बाकी 1 लाख इसका क्या हो गया, डेबिट बैलेंस है. तो ऐसे आएगा टू बैलेंस BD एज 1 लाख, और अगेन दिस इज दी डेबिट बैलेंस, सिंपली वी राइट DR बैलेंस, DR बैलेंस. और दिस इज दी P लिमिटेड क्रेडिट, that much is credited and that much is debited. 3 लाख is debited and 2 लाख is 3 लाख is credited and 2 लाख is debited. तो ये कितना रहा, 1 लाख. तो ये इसका हो गया क्रेडिट बैलेंस. तो ये यहाँ जाएगा बाय बैलेंस BD B/D 1 लाख, and this is the credit balance, and this purchase account and sales account is transferred to the next year, transferred to the trade and professional account. That's why there are no any balances which is to be carried forward to the another year. This amount is transferred to the profit and loss account in that particular year, so there is no balances as said in the how to close the ledgers. Now I will prepare the trial balance according to the different methods which is given. तो फर्स्ट इज ए टोटल मेथड. तो पहले बात करते हैं टोटल मेथड की. तो ऐसे सबसे पहले ऐसा लिखो, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड ट्रायल बैलेंसेज, डेट भी रख दो एज ऑन 31/3/2022. नाउ इसमें कैसा करो कि इसमें ये दो एक कॉलम, इसके साथ ये और इसके साथ एक ये, इसे बोलते हैं डेबिट और ये रुपीज, और ये है क्रेडिट, ये है रुपीज, और यहाँ पर है पार अकाउंट टाइटल. बस, and this is the format of trial balances. Now we prepare trial balances under total method. तो इसमें कुछ भी नहीं करना है. ये जितने तरीका अकाउंट है 1 2 3 4 5 6 7 अकाउंट है, सभी अकाउंट की बैलेंसेस को हमें यहाँ पर उठा कर रखना है. तो डेबिट और क्रेडिट, तो एक अकाउंट के पास दोनों ही बैलेंस है, तो हम दोनों ही बैलेंस को यहाँ पर उठा कर रखते हैं. तो एक है टोटल डेबिट साइड कितना है, इसी को बोलते हैं टोटल, और इसको भी बोलते हैं टोटल हर एक अकाउंट में. और हमें इसी अकाउंट को यहाँ से ट्रांसफ़र करना है. ऐसे सिंपली ऐसे जाएगा, मान लो यहाँ, तो यहाँ पर लिख दो कैश अकाउंट, जौन सा अकाउंट है टाइटल उसका कैश अकाउंट, और इसका टोटल डेबिट 14,13,000, एंड इसका टोटल क्रेडिट 6 लाख. नाउ कैपिटल अकाउंट, इसका कितना है 7 लाख क्रेडिट और 1 लाख डेबिट. तो सिंपली कैपिटल अकाउंट 7 क्रेडिट और 1 डेबिट. फर्नीचर अकाउंट 2 लाख डेबिट एंड 30,000 क्रेडिट, टोटल 230. बैलेंसिंग फिगर को छोड़ करके बिफोर टोटल of that much and total of that much before leaving the trial balances. Furniture account,
तो फर्नीचर अकाउंट में डेबिट इतना है और क्रेडिट इतना है, बैलेंसिंग फिगर को छोड़ करके टोटल जितना डेबिट उतना हम उसको लिखेंगे यहाँ पर 2 लाख और ये 30,000। क्यू लिमिटेड ये डेटर है हमारा, इसमें क्या है कि डेबिट कितना 3 लाख और क्रेडिट 2 लाख बैलेंसिंग फिगर को छोड़ करके। तो ये रहा क्यू लिमिटेड अकाउंट, कितना है 3 लाख और 2 लाख। फिर है पी लिमिटेड हमारे क्रेडिटर अकाउंट, इसमें क्या है क्रेडिट है 3 और डेबिट है 2। पी लिमिटेड अकाउंट 3 और 2, 2 और 3 2 लाख और इसमें 3 लाख बस हो गया। उसके बाद कौन सा अकाउंट रहा, एक रहा परचेज और एक सेल्स। तो परचेज सेल्स में कितना है क्रेडिट साइड, सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड कितना 8 लाख। तो क्या ये बैलेंस भी यहाँ पर कर जाएगा क्या? तो जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया है रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस वाले अकाउंट, वो अकाउंट नहीं जाएगा, सिर्फ उसका जो डेबिट या तो क्रेडिट होगा वही अमाउंट जाएगा। तो यहाँ पर याद रखना कि ये जो हमारे ट्रांसफर थ्रू है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये नहीं जाएगा ट्रायल बैलेंस में, सिर्फ ये ही जाएगा। इसको यहाँ पर याद रखना, क्योंकि जो ये है रिवेन्यूज वाले और एक्सपेंस वाले, तो ये सिर्फ इसका जो भी डेबिट होगा टोटल और क्रेडिट होगा वही जाएगा। इसका जो करस्पॉन्डिंग होगा जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है वो नहीं जाएगा, जो ट्रांसफ़र हुआ है वो नहीं जाएगा। तो सिर्फ इंग्लिश को लिखो सेल्स, यहाँ पर कुछ नहीं ऐसे खाली। और परचेज अकाउंट हाउ मच दैट, 4 लाख। तो परचेज 4 लाख, इनको करो टोटल, यदि दोनों मैच हो गया तो कम से कम हमने जितना को डेबिट किया है उतना क्रेडिट किया है, मतलब हमारे पास ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है। मतलब ट्रायल बैलेंस की जो जितना डेबिट उतना क्रेडिट बराबर रहा है। और ये बराबर क्यों होना चाहिए, क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम पर इसे प्रिपेयर किए हैं, तो ये दोनों के दोनों बराबर होना चाहिए। यदि बराबर है तो कम से कम हमने जितने को डेबिट किया उतना क्रेडिट किया है, मतलब हमारा ट्रायल बैलेंस सही है। इसमें शायद वेस्ट लेवल का गलती नहीं हो सकता है। तो इसमें देख लेते हैं कितना हमने किया है डेबिट, कितना क्रेडिट। तो ये रहा 14 लाख 13,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख और ये 4 लाख। 26, 26 एंड 30, ये 6, 7, 30, 2, 3 और इसके बाद 8, ये भी आ रहा है 26, 30 और ये इस दोनों को आने को बोलते हैं टैली होना। तो यानी कहें मतलब हमारे पास ट्रायल बैलेंस का जितना डेबिट था उतना क्रेडिट हो गया, इक्वल हो गया, तो ट्रायल बैलेंस टैली हो गई। मतलब ये हमारी इसको ये इंडिकेट करते हैं कि फर्स्ट इंस्टेंट एट द फर्स्ट साइट आवर ट्रायल बैलेंस इज ओके एंड करेक्ट एंड दिस इज अंडर द टोटल मेथड। और इसके बाद आएगा एक बैलेंस मेथड। उससे पहले हम जान लें कि किस किस अकाउंट के पास डेबिट होता है बैलेंस और किस किस अकाउंट के पास क्रेडिट होता है बैलेंस, हमेशा यही होगा। तो जितने तरीका का एसेट्स है, एसेट्स और एक्सपेंसेस, कोई भी अकाउंट होगा उसका डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस। और जितने हैं हमारे पास लायबिलिटीज, कैपिटल, रिवेन्यूज इंक्लूड्स गेन्स टू, इसके होता है क्रेडिट बैलेंस। ये हमारे एसेट्स है तो इसका है, ये हो गया डेबिट बैलेंसेज। ये एसेट्स है तो इसका डेबिट बैलेंसेज, ये हमारे एसेट्स है तो इसका डेबिट बैलेंसेज। और ये हमारे लायबिलिटीज है तो इसका क्रेडिट बैलेंसेज। और ये हमारे नॉमिनल वाचर है तो इसका कोई बैलेंस नहीं होता है, ट्रांसफ़र होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये इतना याद रखना पड़ेगा हमारे पास। अब जो नेक्स्ट मेथड है उसे बोलते हैं बैलेंस्ड मेथड। तो सिंपली यहाँ से इसको हम रब करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं अब
बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड में क्या होता है कि हमारे पास हम दोनों अकाउंट की, एक अकाउंट की डेबिट और क्रेडिट को नहीं ट्रांसफ़र करते हैं, उठा के यहाँ से वहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं। सिर्फ उसके जितने बैलेंसिंग होते हैं बाय बैलेंस बीडी या तो क्लोजिंग बैलेंस है सीडी, हम उस बैलेंसेस को यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं और इसी से हमारा ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हो जाता है। और ये जो टोटल मेथड था वो ज़्यादा यूज में नहीं है, क्योंकि वो हमें हर एक अकाउंट की एक्यूरेसी को नहीं बता पाते हैं। और जो बैलेंस मेथड होता है वो हमारे ये ज़्यादा यूज होते हैं, क्योंकि ये हमारे अकाउंट की एक्यूरेसी को अच्छे से मेंटेन करता है, इसके लिए हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं बैलेंस मेथड को। तो इसमें देख लो कि बेकार हमें अब क्या करना है कि अब हम इसकी डेबिट और क्रेडिट कितना हुआ उस पर बातें नहीं करेंगे। विल नॉट टॉक अबाउट द हाउ मच डेबिट एंड क्रेडिट एन अकाउंट हैज, ओनली वी हैव टू सी दैट हाउ मच इज द डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेज। तो डेबिट बैलेंस हाउ मच, ओनली बैलेंसिंग फिगर, ओनली बैलेंसिंग फिगर और बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर और ये बाकी ट्रांसफ़र अकाउंट हैं। तो जितने भी एसेट्स है, लायबिलिटीज़ है, कैपिटल है, एक्सपेंस है, इन सभी को हम देखते हैं। तो ये जितने एसेट्स अकाउंट है और ये जितने एसेट्स है, एसेट्स अकाउंट जितने हो गए और लायबिलिटीज अकाउंट जितने हो गए और कैपिटल अकाउंट होंगे, ये सभी के पास बैलेंस होता है। तो इसका जो बैलेंस होगा, बैलेंस बीडी या तो सीडी बोल सकते हैं, उस क्लोज ईयर एंड पर हम उसको सीडी बोलते हैं। तो हमें उसी बैलेंस को ट्रांसफ़र करना है, ना कि टोटल और डेबिट और क्रेडिट। और जो हमारे पास ये एक्सपेंसेस अकाउंट है, रिवेन्यूज अकाउंट है, उसकी हमें जितना डेबिट या तो क्रेडिट है हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे एज यूजुअल। तो सिंपली देखते हैं कि इस कैश अकाउंट में हमारे पास सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ पर ऐसे मान लो यहाँ पर आ गया कैश और इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पर लिख दो। तो इस कैश अकाउंट के पास कितना है, 8,30,000 क्या है, डेबिट बैलेंस, एसेट्स है, डेबिट बैलेंस है। तो इस बैलेंस को उठाकर यहाँ पर ले जाना है, यहाँ पर। तो इसको यहीं पर लिख दे, क्या बेटर होगा शायद, इट मे बी बेटर। पहले इसको थोड़ा इधर करते हैं, इट मे बी मोर बेटर अकाउंट टाइटल। तो यहाँ से लिखते हैं इसको हम, पहले इसको लिखने के लिए यहीं पर हम एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा, बस यहाँ से खींच दो इसको और यहाँ से भी खींच दो, हो जाएगा इतना ही में। ये रहा डेबिट रुपीज़ और ये रहा क्रेडिट रुपीज़। तब तक हम इसको भूल जाते हैं, मान लो इसको भूल जाते हैं। तो यहाँ से हम इसको उठा कर रखते हैं। यहाँ पर कैश में कितना आएगा, इसके डेबिट बैलेंसेज 830। हमें इस बैलेंस को यहाँ से उठा करके यहाँ पर रख दिए 830। कैपिटल अकाउंट इसका कितना है, कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड कैपिटल अकाउंट। फिर इसको यहाँ से उठाओ और इसको यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर इसके सामने में 6 लाख। उसके साथ उसके बाद यहाँ पर रहा ये, इसको उठाओ और लिख दो यहाँ पर फर्नीचर है, फर्नीचर कितना 170, जिसका डेबिट बैलेंस सिर्फ बैलेंसिंग फिगर को ही यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं। उसमें करते थे क्योंकि डेबिट को और क्रेडिट दोनों को ही ट्रांसफ़र करते थे, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ बैलेंसेस को ही ट्रांसफ़र करते हैं। तो और इसमें रह गया कौन सा, हमारे बैलेंस कितना है 1 लाख। तो क्यू लिमिटेड सिर्फ यहाँ से ये जाएगा, यहाँ से उठकर ये 1 लाख रुपये यहाँ पर जाएगा क्यू लिमिटेड में 1 लाख। फिर इसके बाद कौन सा होगा, पी लिमिटेड। पी लिमिटेड हमारा कितना बैलेंसेज है, यहाँ पर भी है 1 लाख, तो यही उठ कर जाएगा पी लिमिटेड। ये है क्रेडिट बैलेंसेज, तो ये जाएगा 1 लाख यहाँ पर। मान लो यहाँ पर इसको ऐसे क्यों करे इतना, वैसे ही समझ में आ जाएगा ये। फिर हो गया कैपिटल भी हो गया। तो 1 2 3 4 5 अकाउंट हो गया, 1 2 3 4 और 1 5 हो गया। अब एक रह गया
परचेज और सेल्स, यानी कहने का मतलब रेवेन्यूज और एक्सपेंस वाले अकाउंट। तो इस अकाउंट की हम सिंपली जैसे का तैसे ही ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि इसके पास बैलेंसिंग फिगर होते ही नहीं है। तो ये रहा सेल्स अकाउंट। कह रहे तो सेल्स अकाउंट में कितना क्रेडिट है? क्रेडिट है 8 लाख और इसमें डेबिट कुछ है ही नहीं। तो सेल्स अकाउंट में यही जाएगा। इसका हमने क्या है, क्रेडिट 8 लाख और इसमें कुछ भी नहीं। सेल कौन सा है ये, क्योंकि इसके पास बैलेंसिंग फिगर होते ही नहीं है। और परचेज में कितना है, और इस साइड आएगा कुछ भी नहीं। परचेज कितना है 4 लाख, उसमें पास ट्रेडिंग ट्रांसफ़र है, तो ये आएगा यहाँ पर सिर्फ 4 लाख। बस यहाँ पर भी करो टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट, यदि बराबर हुआ तो टोटल बैलेंस सही है, दोनों इक्वल हो गया। तो ये जो रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस वाले अकाउंट होते हैं, क्योंकि वो हमारे पास उसके बैलेंस होते ही नहीं है, इसलिए हम उसको एग्जिटीज उसके जितने डेबिट है या तो क्रेडिट है हम उसको ही ट्रांसफ़र करते हैं। बाकी जितने भी एसेट्स लायबिलिटी इनकम एक्सपेंसेस अकाउंट है, जितने भी एसेट लायबिलिटी और कैपिटल अकाउंट है, उसकी हम डेबिट या तो क्रेडिट बैलेंस को ट्रांसफ़र करते हैं। अब हम इसको देखते हैं, टोटल करते हैं इसको। अब हम इसको टोटल करते हैं, कितना आ रहा है 830, 170, 1 लाख, 4 लाख, ये कितना रहा है 15 लाख, 15 और ये भी 15 लाख आ जाए तो मस्त है। 6, 7 और 8, वाओ, दोनों के दोनों हो गए। इसे बोलते हैं टैली, मतलब इक्वल। तो इसे बोलते हैं, सिर्फ हमने इतना ही प्रिपेयर किया तो इसे बोलते हैं बैलेंस मेथड, और हमने ये प्रिपेयर किया तो इसे बोलते हैं टोटल मेथड्स। तो हमने टोटल्स मेथड से अलग एक सिर्फ इतना और इसको प्रिपेयर किया, तो ये हो गया टोटल मेथड। और बैलेंस मेथड मतलब हमने इतना और इतना, सिर्फ इतना प्रिपेयर किया तो ये हो गया। तो हम सिर्फ इतना प्रिपेयर किए तो ये हो गया बैलेंस मेथड। और हमने इतना और उसके बाद इतना प्रिपेयर किया तो ये हो गया टोटल मेथड। और दोनों को ऐसे कैसे हम कंबाइन कर दिए तो ये हो गया टोटल कम बैलेंस मेथड। तो 3 मेथड हो गया बस। ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकंड और ये रहा थर्ड। तो ट्रायल बैलेंस हमने तीनों ही मेथड से एक ही बार में देख लिए। तो बस ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो कहता है कि हम ट्रायल बैलेंस के क्यों प्रिपेयर करते हैं। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें उनसे एक अर्थमेटिक एक्यूरेसी पता चलते हैं लेजर अकाउंट्स में। ये दोनों के दोनों सेम हो रहा है, कहने का मतलब हमने अर्थमेटिकली हमने जितने को डेबिट किया है उतने को क्रेडिट किया है, तो हमारे पास एक अर्थमेटिक एक्यूरेसी है कि हमारे पास ये चीज़ें सारे के सही है। यदि इसमें कहीं डिफरेंसेस आ जाए तो हमें उसको देखना पड़ेगा, सारे के सारे अकाउंट को एनालाइज करने पड़ेंगे, और जहाँ पर एरर होंगे उसको हम करेक्ट करके फिर उसके बाद हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर यदि गलती हो रहा है इसका मतलब हमने कहीं पर यहाँ पर गलती किए हैं। तो दूसरा ये होता है कि हमें ट्रायल बैलेंस हमें एक एरर को लोकेट करने का भी एक तरीका बताते हैं, हेल्प करते हैं। कहीं पर हमें गलती हो गया तो उसको एरर को डिटेक्ट करने के लिए। और दूसरा होता है कि हमें ट्रायल बैलेंस से अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना सकते हैं। कहने का मतलब हम ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, और इसके बाद जो शुरू होगा वो होगा ट्रायल बैलेंस के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट। तो बाकी ट्रायल बैलेंस बहुत आसान था। तो बाकी किसी को कोई कहीं पर से भी कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दो। बाकी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर तो कर ही सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। थैंक यू।